afternoon, everybody. As all of you are aware, the process of filing of nomination papers, which had commenced on 15th of June 2022, concluded on 29th of June 2022. During the period of filing of nomination papers, I had received 115 nomination papers. Out of these, 28 nomination papers pertaining to 26 candidates were rejected at the time of presentation itself under Section 5B(4) of the Presidential and Vice Presidential Act 1952, as they were not accompanied by a certified copy of the electoral roll. The remaining 87 nomination papers pertaining to 72 candidates were taken up for scrutiny today, the 30th June 2022 at 11 a.m. by me in room number 62, first floor, Parliament House, New Delhi. The candidates, one of their proposers or seconders, and one authorized representative of the candidate were permitted to be present during the scrutiny. Out of the 87 nomination papers taken up for scrutiny, 79 nomination papers were rejected during the course of scrutiny under Section 5B(1)(a), that is, for want of requisite number of proposers and seconders, and under Section 5C, that is, not accompanied by the requisite deposit of Rs 15,000 of the Presidential and Vice Presidential Act 1952. Upon conclusion of the entire scrutiny process held today, the nomination papers filed by the following candidates were found to fulfill all the requirements of a valid nomination. 1. Shrimati Draupadi Murmu, serial number of the nomination paper 29, 30, 31 and 32. Her address is Baidaposi, Ward number 2, Rairangpur, District Mayurbhanj, Odisha. 2. Shri Yashwant Sinha, serial number of nomination paper 39, 40, 41, 42. His address is 228 Sector 15A, Noida, Uttar Pradesh. A statement in this regard has been affixed on the notice boards placed outside my office, that is room number 29, ground floor, Parliament House, Office of the Assistant Returning Officers, Presidential Election Cell and Reception Office, Parliament House, and has also been uploaded on the Rajya Sabha website under the link Presidential Election 2022. After the last date of withdrawal of the candidature at 3 p.m. on Saturday, the 2nd of July 2022, a list of contesting candidates containing the names of the candidates in alphabetical order, together with their addresses, will be prepared and published in the Gazette of India and also in the state gazettes. The poll will be held on Monday, the 18th of July 2022, and the counting of votes will take place on Thursday, the 21st of July 2022. Thank you. नहीं, जो वैलिड नॉमिनेशन पेपर्स थे उसका उल्लेख मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि अधिकांश नॉमिनेशन पेपर्स में प्रपोजर्स या सेकेंडर्स नहीं थे, अथवा उनमें 15,000 रुपये की जो राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आनी चाहिए वो नहीं थी। इसके लिए उनको निरस्त किया गया। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में मेरे साथ में मेरे दो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स श्री मुकुल पांडे एंड श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी भी रहे हैं,
और बाकी सचिवालय के अन्य कर्मचारी भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट रहे हैं। जो टोटल नॉमिनेशन पेपर्स जो दाखिल हुए वो करीबन 318 थे, जिसमें से कि आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि 176 इंग्लिश में और 142 हिंदी में ये सप्लाई हुए पेपर्स। जो नॉमिनेशन पेपर्स लोगों ने डिमांड किए थे उनको सप्लाई किए थे वो हैं। और इनमें से करीबन 11 लोगों ने बाई पोस्ट मांगे तो उनको पोस्ट से सप्लाई किए गए थे। जो टोटल संख्या नॉमिनेशन पेपर्स की जो फाइल हुई वो थी 115 और 94% हैड फाइल्ड दीज पेपर्स, जिसमें से अंग्रेजी में 77 और हिंदी में 38 लोगों ने ये नामांकन पत्र दाखिल किए। 8 नामांकन पत्र पोस्ट से आए थे जो कि मान्य नहीं है, क्योंकि आपको इन पर्सन फाइल करना रहता है। और अगर हम प्रदेश के हिसाब से देखें तो 16 स्टेट्स से नामांकन पत्र मिले। उनमें सबसे अधिकांश एनसीटी ऑफ दिल्ली 23 नॉमिनेशन पत्र पेपर्स बाय 19 कैंडिडेट्स, उत्तर प्रदेश से 18 नॉमिनेशन पेपर्स बाय 16 कैंडिडेट्स, महाराष्ट्र से 14 नॉमिनेशन पेपर बाय 11 कैंडिडेट्स एंड तमिलनाडु से 11 नॉमिनेशन पेपर्स बाय 10 कैंडिडेट्स। ये सिर्फ संख्यात्मक तौर पे आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। टोटल वुमेन कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए वो थे 10 वुमेन कैंडिडेट फाइल्ड 14 नॉमिनेशन पेपर्स, किसी ने एक से अधिक भी फाइल किए। दिल्ली हाईएस्ट रहे 23 नॉमिनेशन पेपर्स बाय 19 कैंडिडेट्स एंड हालांकि ये प्रक्रिया जो नामांकन पत्र दाखिल करने की 15 दिन तक थी, बट सबसे ज़्यादा जो नामांकन मिले वो 29/6/22 को करीबन 35 नामांकन पत्र मिले। मैं कैंडिडेट्स की मैं बात कह रहा हूँ, ये 35-29 को, मतलब टोटल नॉमिनेशन पेपर्स की जो अधिकांश मतलब मैक्सिमम संख्या थी वो भी 29 को ही थी, जिसमें 36 नॉमिनेशन पेपर्स मुझे मिले, क्योंकि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा भी दे सकता था। और सबसे कम अगर नामांकन पत्र मिले हैं तो 17 तारीख को मिले हैं, सिर्फ एक ही नामांकन पत्र मिला मुझे। अदरवाइज आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली एवरी डे आई हैड रिसीव्ड नॉमिनेशन पेपर्स, जिनकी टोटल संख्या 115 थी। सर आपने तो बताया कि 318 पेपर्स इस बार लोगों ने मांगे। तो ये जो ट्रेंड है पिछले इलेक्शन का अभी तक का, ये इसमें सबसे ये ज़्यादा है या एवरेज इतना ही होता है? मांगने की संख्या तो इतनी है, बट ये इतना ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो इस बार नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं उसकी संख्या पिछले चुनावों से ज़्यादा रही है। ये हैंडआउट भी हम सर्कुलेट कर देंगे सर। हाँ, ये आपकी जानकारी के लिए, ये जो मैंने आपको अभी बताया है ये अब हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। Prima facie I would think that would be true. उसका विश्लेषण तो शायद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि समय बहुत कम था। कल शाम तक तो नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, रात भर बैठ के ये सारी जानकारी हासिल की है। और कोई बिंदु जिसके ऊपर आप कुछ जानकारी चाहते हो, अथवा इसको यहाँ समाप्त किया जाए?
अब तक जो नामांकन प्रक्रिया जो 15 दिन तक चली वो बहुत सुचारू रूप से चली। और जो आपका प्रश्न है कि आगे पोलिंग के लिए और काउंटिंग के लिए, उसके लिए भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से है। और समय समय पे निर्वाचन आयोग के निर्देशन में और सहयोग से जैसा एक नियमानुसार होना चाहिए, वो सारी तैयारी हमने पूरी कर ली है। और कुछ अभी चल रही है, क्योंकि अभी 2 तारीख को विड्रॉवल की डेट है, उसके बाद में ही आगे की प्रक्रिया चालू होगी। बट अभी तक हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है।